ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، بار بار قرض لینے سے معیشت کی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ ملک کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی نویں کانفرنس کے تحت اعلیٰ سطح گول میز مباحثے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار خیال، کہا پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے شکار ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کو سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا عالمی برادری قومی ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھا کر موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہم نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Our economic loss is $130 billion. Large swaths of our land was underwater. Millions of houses were destroyed. And then we have to borrow loans to rebuild. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up. We have a youth bulge. 60% of our population is very young. We are offering them training, skill training, offering them lots of other portfolios for productive employment. پاک افغان مذاکرات کی آخری کوشش۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان نے مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ۔ مذاکرات 18 گھنٹے تک جاری رہے۔ افغان طالبان کے وفد نے بار بار پاکستان کے خواریش TTP اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ کارروائی کے منطقی مطالبے سے اتفاق کیا۔ کابل سے ملنے والی ہدایات کی وجہ سے موقف بدلتا رہا۔ مذاکرات میں افغان وفد کے اندرونی اختلافات اور غیر متوقع مطالبات بات چیت کو متاثر کر رہے ہیں۔ ثالث ممالک قطر اور ترکیہ نے کہا کہ مذاکرات میں رکاوٹ کا اصل سبب افغان رجیم کی اندرونی تقسیم اور اقتدار کی رساکشی ہے۔ پاکستان اور میزبان ممالک اب بھی مذاکرات کو منطقی اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات کا مقصد سرحدی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خاتمے اور دو طرفہ تعاون کے عملی فریم ورک پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے امن و امان کے لیے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افغان سمیت کسی بھی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کی FIR درج کرنے کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت جاری۔ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ بھی طلب۔ مریم نواز کا کہنا ہے ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے۔ اجلاس میں وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر ملازمت کرنے والے افغانوں کو بھی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی افغان یا غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تو بھرپور ایکشن ہوگا۔ اجلاس میں انتہا پسند جماعت کے لیے پرچار کرنے والے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی قانون کی زد میں آئیں گے۔ ضروری کارروائی کے بعد پنجاب بھر میں مدارس کو ڈی سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے صوبے کے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر اعظم دونوں کی توقیر کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ پاکستان اس وقت ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے۔ عدالت کے احکامات کو جیل سپرنٹینڈنٹ یا ایک چھوٹا حوالدار بھی نظر انداز کر رہا ہے جو عدالتی وقار کے منافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور عدالتی فیصلوں کے احترام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بانی PTI کے مقدمات تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا رہے۔ ہم توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں۔ ملاقات نہ ہونے کے باوجود ہمیں بانی کا پیغام مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں پھر بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ میں عدالت گیا، اس سے پہلے میں نے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دے۔ عدالت نے کل حکم دیا کہ مجھے عمران خان میرے لیڈر میرے قائد سے ملنے دیا جائے۔
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल आमद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन एक दूसरे से लड़ पड़े। कारकुनान ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। DI खान से आने वाले कारकुन ने सुहेल आफरीदी से मिलने की कोशिश की। मौके पर मौजूद दीगर कारकुनान ने इसको रोकने की कोशिश की। कारकुन की जानिब से वज़ीर आला की गाड़ी की वीडियो बनाने पर हंगामा हुआ। PTI कारकुनान ने DI खान के कारकुन को अली अमीन गंडापुर का भेजा बंदा करार दे दिया। कारकुनान ने DI खान से आए कारकुन पर गंडापुर से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, पाकिस्तान में इंसाफ नहीं सिर्फ फैसले हो रहे हैं, अदालती फैसलों में मुदाखलत हो रही है। उन्होंने कहा, हम मौजूद जजेस को मशवरा देते हैं कि जो भी मुदाखलत करते हैं वकला और आवाम आपके साथ हैं। हम अदालत से दरख्वास्त गुजार हैं कि अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ दे दिया है। आपको बताएं कि ये टाकरा है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, पहला T20 है और बड़ा शानदार मुजाहरा किया गया है। साउथ अफ्रीका की जानिब से 195 रन का हदफ दिया गया है। आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है और 195 रन का हदफ दिया है। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया गया है। पहला T20 मैच है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ दे दिया है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है और 195 रन का हदफ दिया गया है। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका का पहला T20 है ये, और जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग की है और पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया है। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली, पीपल्स पार्टी तजब्जुब का शिकार हो गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत अदम एतमाद की हिकमत अमली पर मुशावरत के बावजूद तजब्जुब का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के 2 अहम रहनुमाओं से अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत के लिए दरख्वास्त दे दी है। इस हवाले से आपको बताया, आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली, पीपल्स पार्टी तजब्जुब का शिकार हो गई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई है और मुस्लिम लीग नून ने अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत कर दिए हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के 2 रहनुमाओं से अदम एतमाद की गुजारिश की। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन हुकूमती तब्दीली, पीपल्स पार्टी तजब्जुब का शिकार है, जबकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान ये मुलाकात हुई है। PTI का आज़ाद कश्मीर सियासी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब। इजलास की सरबराही सलमान अकरम राजा करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए खालिद यूसुफ चौधरी और कयूम न्याजी पहुंच गए हैं। इजलास में आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म की तब्दीली के अमल पर सियासी क़यादत मुशावरत करेगी। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी PTI की हिदायत की रोशनी में फैसले करेंगे। खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा, पार्टी आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के मामलात और PTI के पार्लिमानी किरदार पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर सियासी सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब किया गया है। इजलास में शिरकत के लिए खालिद यूसुफ चौधरी और कयूम न्याजी पहुंच गए हैं। आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म की तब्दीली के अमल पर सियासी क़यादत मुशावरत करेगी। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी डट गए, एक बार फिर मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया। अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। चौधरी अनवारुल हक का कहा, इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। मेरी सेहत अंसर अब्दाली ने कहा, वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली ने कहा कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े की खबरें बेबुनियाद है। अनवारुल हक इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम वज़ीर आज़म के साथ हैं, भागने वालों में से नहीं हैं। 26 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी का मामला। FBI कल बुध को क्लब रोड प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। ज़राए के मुताबिक FBI की जानिब से प्रॉपर्टी की नीलामी से अरबों रुपए की आमदन मुतवक्के है। क्लब रोड न्यू प्लाट नंबर 17 प्रॉपर्टी बेरिया टाउन से मुतालिक है। FBI 4 सितंबर को 10 गाड़ियों की नीलामी से 1 करोड़ के लगभग रकम वसूल कर चुका है। ज़राए का यह भी दावा है कि बहरिया टाउन के एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक 500 से ज़ायद गाड़ियां हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि एक्साइज रिकॉर्ड के मुताबिक बहरिया टाउन के पास 500 से ज़ायद गाड़ियां हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़मान मुगल से। ज़मान बताएगा, प्लॉट बेचने का फैसला किया गया है। तीसरी नीलामी है। बैरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम किया जा रहा है और पहले 2 जो नीलामी है उनमें से भारी रकम जो है रिकवर की गई थी और अब ये तीसरी नीलामी है जिसमें क्लब रोड का एक प्लाट है, उसका प्लाट नंबर 17 है और ये भी बैरिया टाउन के मुतल्लिक है और उम्मीद ये की जा रही है कि इससे करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए जो है वो
रिकवरी होगी एफबीआर को। और इसके अलावा नैब ने भी इससे पहले 50 गाड़ियां जो इस बैरिया टाउन की हैं वो कब्जा में ली थी, और एफबीआर टोटल 26 अरब रुपए की बैरिया टाउन से मुतल्लिका मजीद प्रॉपर्टीज हैं उनकी चंद हफ्तों में नीलामी करने की तैयारी कर रहा है। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। ये पेशरफ दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत, भाईचारे और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्ते की अक्कासी करती है। एलामिया के मुताबिक इस फ्रेमवर्क के तहत इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में कई स्ट्रैटेजिक और आला असरात के हामिल मनसूबों पर बातचीत की जाएगी ताकि ताउन को मजीद मजबूत बनाया जा सके, निजी शोबे के किरदार को भी बढ़ाया जा सके और तिजारती तबादले को फ़रोग दिया जा सके। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त कई मुश्तरका इक़्तिसादी मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनमें बिजली की तरसील, इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन के मंसूबे के लिए मफाहमती याददाश्त और तवानाई के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त शामिल है। एलामी में कहा गया है कि फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने और इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में पायदार शराकतदारी के क़याम के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका विजन की तौसीक करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम अरब ममालिक का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के अहम दौरों में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत की गई। फील्ड मार्शल के दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन दौरों से पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ है। आर्मी चीफ की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान आलमी उफक पर अपने मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभर रहा है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने दौरा बांग्लादेश के दौरान बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा से आर्मी हेडक्वार्टर्स ढाका में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को वसअत देने के अमूर पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान अस्करी क़यादत ने मुख्तलिफ सतहों पर वफूद के बाकायदा तबादलों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जबकि मुलाकात में उभरती हुई आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, इंसानी अलमी के फौरी खात्मे पर जोर दिया। पाकिस्तान सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़ेदान से टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें गज़ा की ताज़ा सूरत हाल और फ़लस्तीन में देर पाम के क़याम पर बातचीत हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इसहाक़ डार अगले हफ्ते तुर्किया का दौरा करेंगे, जहां वो अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में शिरकत करेंगे। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ारत दाखिला के डिप्टी वज़ीर ने ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टिपू और दीगर आला हुकाम ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ECU वज़राए दाखिला इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ खित्ते में सलामती, सरहदी ताउन और इंसदादे मुनशियात से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपेगेंडा साजिश बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का CIA और मुसाद के साथ मुआहदा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट ने मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का भी झूठा दावा किया, जबकि वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मुताबिक पाकिस्तान ने ना कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना किसी फौजी तैनाती पर बात हुई है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा, ISPR और दफ्तर ख़ारजा ने भी गजा में किसी फौजी मिशन की तायद या ऐलान कभी नहीं किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह अवामी खिदमत की फराहमी में एक संग मील है। ये मनसूबा डिजिटल तब्दीली, शफाफियत और अवामी बाइख्तियारी का मसर है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महकमा साइंस एंड IT हुकूमत का अमली और स्ट्रेटजिक बासु है। सिंध जॉब पोर्टल मौसर, जामे और शहरी मरकूज IT सिस्टम्स की बेहतरीन मिसाल है। हुक्मरानी को जदीद खतूत पर उस्तवार करना और अवामी खिदमात तक रसाई को आसान बना रहे हैं। शहरी और देही इलाकों में अवामी सहूलत के प्लेटफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सिंध जॉब पोर्टल के इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान किया। जॉब्स के लिए इन्होंने ये पोर्टल अब बनाया। अब पोर्टल के दो हिस्से हैं, एक वो है जो जॉब दे रहा है यानी हुकूमत सिंध, और एक वो है जो दफ्तर में जाएगा, ज्वाइनिंग देगा। जैसे उसकी ज्वाइनिंग एंटर होगी, फाइनेंस को भी इतला चली जाएगी। तो ये पूरा के पूरा ऑटोमेटेड होगा, जिसके साथ साथ ये सारी चीज़ें सिर्फ SMS पे रिलाई नहीं करेंगे, एक हार्ड कॉपी भी हर स्टेज पे जाएगी। हम ट्रांसपेरेंटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग सेलेक्ट करेंगे, सूबे के लोगों को मेरिट पे ट्रांसपेरेंटली नौकरियां मिले और इससे पूरे सूबे का फ़ायदा होगा, मुल्क का फ़ायदा होगा, आम आदमी का फ़ायदा होगा। बलोचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड जारी करने का फैसला। मिनॉरिटी इंडोमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि आइंदा माली साल फंड 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अक़लियतों को सेहत, तालीम, रोज़गार और कारोबार में सहूलियात फराहम की जाएंगी। अक़लियती बरादरी के लिए मुआवनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। बलोचिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और खुशहाली से सूबे की मजमूई समाजी अमांगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन, DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद को तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 21 के सैयद खुरम अली नए DG NCCIA तैनात। खुरम अली पंजाब हुकूमत के ज़ेर निगरानी खिदमात अंजाम दे रहे थे। वकारुद्दीन सैयद को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जुडिशल मैजिस्ट्रेट लाहौर ने रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया है। सूबाई असम्बली के स्पीकर चेंबर में स्पीकर बाबर सलीम सवाती और DG नैब की 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाइयों और नोटिस के इजरा से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने नैब की कार्रवाइयों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से DG नैब को आगाह किया। स्पीकर ने सवाल उठाया कि नोटिस पहले सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, बाद में मेंबर को मिलते हैं, यह तरीक़ेकार क्या है? जिस पर DG नैब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आजकल सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर सकता है? स्पीकर ने वाज़ेह किया कि जिन केसेस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं उनमें एक डॉक्टर अमजद अदालत से केस जीत चुके हैं। ज़राए के मुताबिक DG नैब ने स्पीकर को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा।